Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. So in the last part, we discussed about that significant figures, and next part of this, we'll discuss about this rounding of a number. So you might be studied about rounding off. So like जनरल मीनिंग हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर 99 है तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 100 लिख सकता है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. So we'll discuss what are the rules or how we'll round off a number. So first thing, we know that if the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit should be increased by 1. That means, suppose if you're having a number, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So over here, normally we have to arrange with respect to the number of significant figures. The question में ऐसा देगा, assume that there is a measurement and that measurement value is given something like this. Okay. Now, RM is to arrange this one to some specific number of significant figures. So in this 1, 2, 3, 4, 5, 6, what about the number of significant figures? 6. 6. Okay? 6. Yeah. So all non-zero digits are, we know that significant figures. This means 6 number of significant figures are there. Now in question, they are saying that arrange it to 5 significant figure. इसको 5 significant figure में arrange करके लिखना है. मतलब हम लोग इसको 6 digit है, इसको 5 digit में convert करके लिखना है. तो हम लोग क्या करेगा, ये जो last digit है इसको round off करेगा. Always we are going to round off the last digit. So means हम लोग ये जो 6 है इसको drop करना है. So the digit to be dropped is nothing but 6. ठीक है. तो if the digit to be dropped is more than 5, तो हम लोग इसको round off करके कैसे लिखेगा? 60. 1, 2, नहीं 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 3, 6. 4, 6. Got it? राउंड ऑफ करके मतलब लोग नॉर्मली जो 99 को 100 कर रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है. तो हम लोग इसको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से अरेंज करके लिखना है. दिस इन मेजरमेंट इज हैविंग 6 significant figures and we are converting it into 5 significant figures. समझ बात? तो we'll get the answer as 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हम लोग खाली ये देखता है कौन सा डिजिट को ड्रॉप करना है. हम लोग 6 को ड्रॉप करना है, 6 को हटाना है. If the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit should increase by 1. तो 5 का वैल्यू हमने 1 इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, 6 हो गया. समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? No, sir. ओके. अभी देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है. अभी जो आंसर मिला है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 5. 5. अगर बोला इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करके लिख दो तो बोलो क्या मिलेगा आंसर? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 5. 3, 4, 5. ठीक है. तो हमने इधर डिजिट टू बी नहीं आएगा ड्रॉप ना इज सर? 4 नहीं 5. आएगा. 4 नहीं आएगा. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. 5. Yeah, 1, 2, 3, 5. तो then the digit to be dropped is more than 5. तो हम लोग को preceding digit को एक increase करके लिखना है, ठीक है. तो ये हो गया एक रूल. अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करेगा? नेक्स्ट वन देखते हैं. 5 से कम है तो क्या करेगा? तो like it is 1, 2, 3, take it 3, 2, 1 something like this. And over here the number of significant figures हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And RM is to convert it into 5 number of significant figures. So over here digit to be dropped is nothing but 1. तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेगा आंसर? 1, 2, 3, 4, 2. 4, 3, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2. 2. 4, 3, 2. 2. okay. So if the digit to be dropped is less than 5, then will not make any difference to that number. तो अगर 5 से कम है तो हम लोग इसको कुछ changes नहीं करेगा. अभी देखता है if the digit to be dropped is 5, then क्या करेगा? तो इसके लिए दो टर्म है. if it is 5 और 5 followed by 0, मतलब अगर ऐसा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5. So the digit to be dropped is 5. Okay. Or it may be something like 1, 2, 3, 4, 5, 0. The digit to be 5 or 5 followed by 0. Okay. And over here we can say that here 5 significant figures are there. And over here कितना significant figure है? 5. 5. Because the last जो 0 है वो significant नहीं है. नहीं है.
तो इसको हमने कन्वर्ट करके लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो इधर क्या हो गया, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। देन आप देखना है कि प्रीसीडिंग डिजिट क्या है। तो इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज एन Even. ऑड नंबर, अभी इधर देखो, इधर प्रीसीडिंग डिजिट इवन नंबर है, Even है। अगर ऑड बना है तो हम लोग को उसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब I'll take an example, like if it is 1 2 3 3 5, okay, और दूसरा क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 5 and digit to be dropped is 5। तो आप उसका पहले वाला नंबर प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज एन ऑड नंबर तो उसको एक 1 इंक्रीज करना है। अगर 3 ऑड नंबर है तो 3 + 1 करेगा। इधर 4 है तो 4 इवन नंबर है तो उसको कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या मिलेगा? 1 2 1 3 2 4 3 1 4। 2 3 4 इधर भी आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 1 2 4 3 4। ठीक है, तो ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज करना है, इवन नंबर है तो वील कीप इट एज इट इज। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। नाउ अगर ये 5 है, 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट है, मतलब अगर ऐसा दिया है 1 2 3 3 5 1 एंड दूसरे क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 1। सो 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, मतलब हम लोग ऐसा राउंडिंग ऑफ का मतलब यही है, 50 से ज्यादा है तो हम लोग उसको 1 मान लेगा, मतलब आधा से ज्यादा है तो 1 मान लेगा, आधा से कम है तो हम लोग उसको इग्नोर करेगा, ऐसा ही। तो ओवर हियर number of significant figures in this observation we know that it is 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाँ अब इसमें 6 significant figures है, इसको अरेंज करने के लिए बोला है 4 significant figures में। ओके, 1 2 इधर भी सेम थिंग है। 4। तो अभी इधर देखना है 1 मिनट। तो हमारा जो डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है? 5 है, 5 को ड्रॉप करना है। बट ओवर हियर 5 फॉलोड बाय 0 नहीं है, 5 फॉलोड बाय 1 है। 1 ओके, तो 5 फॉलोड बाय 1 है, उसका मतलब क्या है कि ये 50 से ज्यादा हो रहा है। मतलब इफ इट इज 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट है तो वी शुड इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1। उसमें ऑड नंबर है, इवन नंबर है, कुछ भी नहीं देखना है। मतलब ये 3 को 4 करना है, ये 4 को 5 करना है। तो आंसर क्या मिलेगा? If it is 1। greater than 50. sir but हाँ, sir but 4 is even। अरे बेटा वही बोला है, 5 फॉलो 5 या 5 फॉलोड बाय 0 अलग है। 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट हो गया, मतलब क्या हो गया? 50% से ऊपर गया ना, समझ बात? सर तो- और अगर 50% से नीचे तो मतलब कुछ नहीं करेंगे ना, बस वो नंबर्स निकाल देंगे ना। तो अगर 5 और 5 फॉलोड बाय 0, समझ में? 5 और 5 फॉलोड बाय 0। Sir, तो if it देखना is है, like 1 2 3 4 4 1, then एक मिनट। इफ इट इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 तो प्रीसीडिंग डिजिट को इवन है कि ऑड है वो सब देखना पड़ेगा। करेक्ट? और अगर if it is 5 के non-zero बाद then कुछ देन so कुछ भी नहीं देखना है, प्रीसीडिंग डिजिट Okay. को एक इंक्रीज करना ही करना है। understood। तो इधर आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 4। इधर भी आंसर क्या मिलेगा? 1 2 3 5। समय बाद हम लोग को देखना कब है कि 5 और 5 फॉलोड बाय 0 आ गया, तभी इवन और ऑड देखना है, वरना कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। प्रीसीडिंग डिजिट शुड इंक्रीज बाय 1। समय बाद बोलो बेटा, आपने कुछ नंबर बोल रहा था, क्या बोला था? 1 2 1 2 3 4 4 1 1 2 3 4 4 1। Sir, how 4 will 1। it? ओके, Yeah. हाँ, इसमें कुछ नहीं है, मतलब आपको कौन पहले डिसाइड करना है कितना डिजिट को सिग्निफिकेंट, Sir, मतलब if ये like राउंड ऑफ same as before, 4 till 4 digits. टिल 4 डिजिट राउंड ऑफ करना है। तो उसका मतलब है हमारा जो आंसर में ऑलरेडी 4 डिजिट होना चाहिए। तो इधर कितना है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो हम लोग कौन सा डिजिट को राउंड ऑफ करके लिखना है? ये डिजिट को राउंड ऑफ करके लिखना है। 4 Yes. तो डिजिट टू बी राउंड ऑफ ड्रॉप्ड, कौन सा डिजिट को हमको छोड़ना है? वो 4 है। तो उससे Yes. पहले वाला नंबर को हम लोग कुछ भी नहीं करेगा, एज इट इज लिखेगा, बिकॉज नंबर ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। तो 1 2 3 4 दैट इज आंसर। समझा? ओके। Okay. And if the number before is greater than 5, देन वी शुड इंक्रीज बाय 1। अभी आया क्या क्लास में? no, sir. 1 2 3 4 6 1 है। Yes. तो अगर हमको ड्रॉप करना है A6 को, Yes. okay, then the preceding digit should increase by 1।
तो होगा 1, 2, 1 3, 2 5. 3 5. Got it. Okay. And if it is 1 2 3 4 5 1, then क्या करना है? 1 अब 2 5 3 को ड्रॉप 5 करना है. A 5 से 1 ज्यादा है. Then the answer is 1 Yes. 2 2 3 3 5. 3, 5. 5. अगर if it is 1 2 3 5 4 5 0 है, तो 5 followed by 0 है. 1, 2, 3, 4. ही होगा सर. हाँ, तो 1 2 3 4 ही होगा. समझा? अगर वो ऐसा है 1 2 3 3 5 0, then it सर is 1 2 3 4 हो 3 जाएगा. 4. Because the digit to be, मतलब ये dropped 5 है, 5 followed by 0 है, तो preceding digit even odd number है तो एक increase करना है. Even number है तो will not change. I think it's clear, right? यस सर. इसका कोई रीजन है क्या सर इवन में ऐसा करने का, ऑड में Yeah, वैसा? yes. नहीं, even में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि because हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि 1 से थोड़ा ज्यादा है तो हम लोग 2 में कंसिडर करते हैं. There is not a specific any reason for it. ओके. Sir, तो आप इसका बोलो बेटा. sir, if the number is 1, 2, 3, 4, 5, 4, then 1 2 3 4 5, 4. 5 4. Yeah. आपको कौन सा डिजिट को ड्रॉप करना है? 4 digits, sir. 4 को 1 2 3 4 4 में अरेंज करके लिखना है. मतलब ये 5 को ड्रॉप करना है. Yeah, 5 could. 1, 2, 3, देन आप 5. देखेगा, हाँ, देन आप देखेगा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है. प्रीसीडिंग डिजिट सॉरी इधर 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो है ना बेटा. 1 2 3 5. तो ये क्या हो गया? 50 क्रॉस कर दिया, 54 हो गया. उसका मतलब कि इसको एक इंक्रीज करना है. If 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit should increase by 1. तो आंसर रहेगा 1 2 3 5. समझा? Okay, sir. Third on this one, rules for rounding off. Reading rules for rounding off. Rules for rounding off. Rules for rounding off. There you can write first rule. If the digit to be dropped, if the digit to be dropped is more than 5, if the digit to be dropped is more than 5, then the preceding digit should increase by 1. एक increase करना. Next point, if the digit The continuation of next point. हाँ, मतलब वो सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा लिख सकते हैं सेम पॉइंट में. If the digit to be dropped, if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. Then the preceding digit is left unchanged. Done, sir. So wait a minute, sir, please. So what will happen if it is exactly 5? If it is 5 और 5 followed by 0, आप उसका पहले वाला नंबर को देखना है, प्रेसिडेंट डिजिट को देखना है. Okay, so if it is अगर odd, प्रेसिडेंट odd then एक इंक्रीज करना है. इवन है तो कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे डिसलेक्ट. okay, thank you, sir. That we are writing on second point. If the digit to be dropped,
the digit to be dropped is 5 followed by a non-zero digit. 5 followed by a non-zero digit. Then the preceding digit should increase by 1. The 5 followed by a non-zero digit. Then the preceding digit. The preceding digit should increase by 1. Preceding digit should increase by 1. Should increase by 1. Sir, बोलो बेटा. sir, in the second point, sir, it does not matter whether it is a odd digit or even digit, right? No. 5 से आगे मतलब 50 के आगे गया 50% से आगे गया तो उसको 1 मान लेगा पहले वाला को, मतलब एक इंक्रीज करेगा ऐसा. Okay, thank you, sir. And again, third point, if the digit to be dropped, is 5 or 5 followed by 0 or 5 followed by 0. 5 followed by 0. Then the preceding digit, is raised by 1. The preceding digit is raised by 1 if it is odd number है तो increase करना, and left unchanged if it is even. Sir, this will be applicable to second point also, right? Because if it is odd, then then only we'll add one number. Here we are followed by 0. There, Yeah, here it is followed by 0. Yeah, Here it is. that, but that No, second even last- number yeah. 5 से 0 से ज्यादा है proceeding digit, तो मतलब 5 को ड्रॉप करना है, 5 के आगे 0 नहीं है, 0 से कोई भी अदर नंबर है other than 0 है, then the preceding digit should increase by 1 irrespective of even number है कि odd number है. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. तभी हमने दो चीज पढ़ा है, एक था significant figures और second one है there is nothing but this rounding off. अभी हम देखते हैं ये significant figure और rounding off का application किधर है, ठीक है? So मान लो we are measuring the mass of different objects. We are having different objects like mass of A, first object is around, you are getting it as 5 kilogram, एक measurement value है. And mass of second object, you got it as something but let's say 0.1 kilogram. And mass of third object that you got it as something but 1.123 kilogram. And mass of fourth object that you got it as 0.00135 kilogram. And in a question they are asking to find out what about the total mass of the system. ये पूरा मिला के ये system का mass कितना है वो find out कर. So for the calculation of total mass हमने क्या किया, first 5 kilogram लिखा, then 0.1 उसके साथ add कर दिया, then 1.123 उसके साथ add किया,
then 0.00135 उसके साथ ऐड किया. So we are saying that we are going to get the answer as nothing but 5. ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, a point, and this is 6. So we'll So say you have to that round it off till least decimal, right? no, 1 minute. So we'll say that कि अगर हमको पूछा है कि टोटल मास कितना आ गया, तो हम बोलेगा कि ओके यार टोटल मास इस सिस्टम इज 6.22435. ओके, नाउ ये जो आंसर है ये करेक्ट है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर गलत है. ओके, बोलो क्या क्या गलत है और क्यों गलत है? सिग्निफिकेंट, हाँ सर, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे देखना है आपको. हाँ, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है. क्यों देखना है सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर? because that is more accurate. यस सर. Why it is not accurate? मतलब ये वैल्यू गलत है, वैल्यू सही नहीं है. ठीक है, ये वैल्यू गलत है. वो वैल्यू गलत क्यों है? सर उसमें एरर भी हो सकता है. हाँ, एरर क्यों हो सकता है? So while Because- measuring last digit can be हाँ, because last because digit is अभी uncertain. देखो ये जो 5 है, 5 के आगे हम लोग इसका मेजरमेंट नहीं किया है. समझ बात? हमने बोला 5 किलोग्राम है, तो ये 5 किलोग्राम के बाद इधर कौन सा डिजिट आएगा हमने मेजरमेंट नहीं किया है. समझा? ये हो सकता है कि 1 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ वैल्यू हो सकता है, बट हमने उतना लेवल पे जाके मेजरमेंट नहीं किया. मतलब ए डिजिट मेजरमेंट नहीं किया, ए भी नहीं किया, ए भी नहीं किया. और ये 1 के बाद 0.1 के बाद नेक्स्ट डिजिट इधर क्या आएगा हमने मेजरमेंट नहीं किया, और इधर भी आगे का मेजरमेंट नहीं किया. समझा? इधर कुछ वैल्यू हो सकता है, बट हमने वो सब मेजरमेंट नहीं किया है. तो वी कैन से दैट हमारा जो रीडिंग है, रीडिंग में ये जो 5 है उसके बारे में कुछ भी गारंटी नहीं है, बिकॉज आगे इधर कुछ नंबर अगर फाइंड आउट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इधर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, बट हमने इधर का वैल्यू फाइंड आउट किया ही नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट दिस 5 इज करेक्ट. सो हम लोग इसमें क्या देखना है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन के अंदर नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स देखना है. समझा? ध्यान से सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स देखना है. ओके, शुड नॉट ऑब्जर्व सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स देखना है. तो हर रिजल्ट में जो डेसिमल पॉइंट्स है that should be equal to least number of decimal points in any of the calculation or any of the observation. तो इसमें decimal points कितना था? A point one इसमें is the zero. least. 0. 5 पॉइंट के बाद कुछ मेजरमेंट नहीं किया ना बेटा? नहीं. समझा? इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितना है? 1. इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितना है? 3. इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितना है? 5. 5. तो हमारा जो आंसर मिलेगा उसमें डेसिमल पॉइंट्स कितना होना चाहिए? 0. 0 डेसिमल पॉइंट्स होना चाहिए. ठीक है, तो 0 डेसिमल पॉइंट्स करने के लिए ये इतना पार्ट को हटाना है. 6. तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको सीधा कट करके 6 आंसर लेगा, आपको ये 2 को ड्रॉप करना है. समझ बात? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ लगाना पड़ेगा. द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 से कम है, तो कुछ आंसर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. 6. सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 6 किलोग्राम. 6 kg. समझ बात? तब देखना है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन यू शुड नॉट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर, यू शुड count decimal points. Correct? So number of decimal points in the final result should be equal to least number of decimal points in the like in any of the observations. Correct? But Yes, अगर आप sir. multiplication और division करेगा, then we need to observe the number of Least number of significant figures. significant figures. Okay? तो दोनों का अलग है. बोलो बेटा. Sir, can you scroll up once to the rules? 1 minute. ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है. तो इफ याद रखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल अलग है. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है. ओके, मतलब अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड अज्यूम दैट यू गॉट द आंसर एज लाइक एक नंबर है 0.1, ठीक है, and you are multiplying it with 25. Got it? So we'll get the answer as something but let's say 2.5. 2.5. तब देखेगा कि
इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 1 इसमें कितना है? 2 2 2। तो हमारा आंसर में कितना होना 3 चाहिए? 1 1 लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कितना? 1 होना चाहिए। 2 तो तो इसमें 2.5 2 है, है तो उसको तो फिर राउंड करें तो उसको क्या आएगा आंसर? 2 सर 2 ही 5 आएगा। को 2 ही सर आएगा। 5 को 2 ड्रॉप करना है तो देखेगा हाँ ये इवन नंबर है, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। 2 समझा? सर पर वो 5 के पीछे क्या दिया हमें पता नहीं ना, तो हम पता अब नहीं है, 0 लेंगे। मतलब पता नहीं है मतलब 0 है। यस, ओके इसलिए 5 या 5 फॉलोड बाय 0 ऐसा मानता है। सर ओके सर। बोलो बेटा। सर वो जो आपने 6 पॉइंट वाला उसमें जो फर्स्ट डेसिमल नंबर है वो अगर 5 होता तो 7 होता ना केजी। बट वो लिखा नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, समझा? इट में भी 6.000 भी हो सकता है, बट हमको पता नहीं है। Yes, sir. तो सर हमारा जो फाइनल एडिशन का रिजल्ट एक आएगा, बार फिर बोलो। क्या बोला बेटा? सर एडिशन का फिर से एक बार बोलो ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स को देखना है, ठीक है? मतलब अगर आप ऐड कर रहे हैं 1.0123, सेकंड ऐड कर रहा है 5.62 और थर्ड ऐप ऐड कर रहा है लेट्स से 10.113, ओके? तो ये पूरा ऐड करके आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। अब लिखेगा 3, देन लिखेगा 5, देन लिखेगा 4, देन 7.51। फिर आप देखिएगा इसमें डेसिमल पॉइंट्स कितना है? 3। इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? 3। तो फाइनल आंसर में भी नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स डेसिमल शुड पॉइंट्स बी 2 इक्वल होना टू चाहिए। 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखना है कौन सा नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब ड्रॉप करना है। ये 5 को ड्रॉप करना है, सो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो पहले वाला नंबर को देखना है। पहले वाला नंबर 4 है, तो वो वो 5 ऑड हो नंबर जाएगा। है। वो नहीं नहीं, वो इवन नंबर है, तो उसको चेंज नहीं तो करेगा। 7 4 सर सॉरी पर सॉरी वो सॉरी सॉरी 53 है ना। 53 है। This will be equal to 15.75 will be the answer. 5 यस followed by non-zero digit है, तो आप उसको ऐसा लिख देंगे। पर समझा? सर उसके पहले ओके इवन भी तो है। तो वो नहीं नहीं, 5 0 में होता 5 है। और 5 0 में होता है ना। पर यार 5 followed by ओके सर 3 है ना, 0 नहीं है ना। Got it. तो रूल लिख दो, यस सर। डाउन एंड एडिंग। Sir, बोलो बेटा। sir, in 2.5 there should be 2 significant figures, right? या 2.5 में 2 है। यस। Sir, आपने ऊपर 1 लिखा था. नहीं 0.1 नहीं, की था 0.1 का 1 लिखा है, 0.1 में 1, Sir, ये देखो 2.5 में 2। तो अरे तो multiplication इसको में जो you have to take the least मल्टीप्लिकेशन, significant figure मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन लीस्ट के करना है बाद ना। हमको जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 होना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। तो बट लीस्ट इधर होगा 2 ना। है, हाँ अभी 2.5 में 2 है, तो 2.2 को 1 में कन्वर्ट करके लिखने के लिए 5 को ड्रॉप कर दिया, तो 2 मिला, तो 1 okay सिग्निफिकेंट फिगर। okay Around this one, adding significant figures in calculation. Significant figures in calculation. Significant figures in calculation. Here you can write in addition and subtraction. In addition and subtraction, number of decimal points, number of decimal points in the final result should be equal to least number of decimal points should be equal to least number of decimal points in any of the observations
तो अब डेसिमल पॉइंट्स को देखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी नेक्स्ट रूल हम लोग लिखते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, where you can write in multiplication and division, number of significant figures in the final result should be equal to the least number of significant figures in any of the observation. सर बोलो बेटा। सर राउंडिंग ऑफ आज के टेस्ट में आएगा क्या? हाँ आ सकता है। ओके ठीक है। So now we'll discuss some questions based on this rounding off and other things. Okay. So over here, तो आप पहले हमने 2-3 पॉइंट्स डिस्कस किया है, सब याद रखना है, राउंडिंग ऑफ का और ये significant figures in calculation and error का analysis also. Okay. So over here, if mass of and length of a metal cube are 10 kilogram, 10 plus or minus 0.1 and 1 plus or minus 0.02 meters are given. The density with percentage error is. They're asking what about the value of density with percentage error. तो हम लोग को पहले देखना है डेंसिटी के लिए इक्वेशंस क्या होगा।
What is the equation for a density? Mass upon volume. Mass mass upon upon volume. mass upon L cube. Yeah, L cube. तो हम लोग को इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या क्या पूछा है, एक एक्चुअल वैल्यू पूछा है विद परसेंटेज एरर पूछा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इसका हम लोग कल इतना ही लिखा था, अगर इफ y is equal to x raised to n तो परसेंटेज एरर इन y is equal to क्या था, n into N percentage into of x. x एंड n पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो भी ऐड करेगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो भी ऐड करेगा, है ना। तो अभी बोलो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। m का पावर कितना है इधर, 1 है, 1 2 रहेगा। हाँ, तो v का पावर भी 2 रहेगा, ऐसा नहीं, v का पावर भी क्या है, 1 है। हाँ, तो 1 into percentage error of m plus 1 into percentage error of v, समझा। तो अगर यार अब देखना है हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मास दिया है एंड लेंथ दिया है। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या लिखेगा, m डिवाइडेड बाय l क्यूब लिखेगा। तो इक्वेशन बिकम्स ml raised to -3 हो गया। तो बोलो अभी m और l का सब टर्म्स में व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। Sir, 1 Sir, plus 3 into L m हाँ, प्लस 3 into 3 into परसेंटेज एरर इन l। L. Got it। अभी देखना है m में एरर कितना है, परसेंटेज एरर कितना है, और l में एरर कितना है। तो मास को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया है, 10 प्लस और माइनस 0.1। तो हाउ विल फाइंड आउट परसेंटेज एरर, RE into 100. upon 10 रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनटू 100 और मतलब 1 error sir, point 1. error into 10, that is actual value 0.1 by 1 into 100, तो आपको 1 परसेंटेज होगा। एरर मिलेगा। तो परसेंटेज एरर क्या मिला, 1% मिला। तो आपका m का परसेंटेज मिला। अभी किसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, l का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो l क्या लिखा है, 1 प्लस और माइनस 0.02। तो परसेंटेज एरर इन l इज इक्वल टू नथिंग बट एरर इन l, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू 1 into 100। तो क्या मिलेगा आंसर, 2%। तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, 7%. हाँ, 1 into percentage error in mass, that is 1 plus 3 into percentage error in L, that is 2। तो पूरा मिला के 6 plus 1 7% का एरर हो गया। समझ में आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आप डेंसिटी देखना है, डेंसिटी में मास कितना था, एक्चुअल वैल्यू देखना है, मास 10 किलोग्राम था डिवाइडेड बाय L क्यूब, L का वैल्यू क्या था, 1 था, 1 का क्यूब क्या आएगा 1। तो आंसर, एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, विदाउट एरर 10 होना चाहिए, बट इसमें प्लस और माइनस 7% का एरर हो सकता है। तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर, 10 प्लस और माइनस 7%। अगर आप इसको एब्सोल्यूट एरर का टर्म में लिखना है, समटाइम्स क्या पूछेगा, एब्सोल्यूट एरर का टर्म में पूछेगा, तो क्या मिलेगा आंसर, 10 प्लस और माइनस 0.7, 10 का 7%। समझ बात, किसी को डाउट है, नो सर। okay, third on this one। Sir, in today's test, last week का भी syllabus रहेगा। हाँ, लास्ट वीक मतलब यूनिट एंड डायमेंशंस का आएगा। Sir, no sir, it was, the pattern is 40 plus 40 plus 80, right? Yeah, but वेटेज 20, सबसे 40 ज्यादा plus ये लास्ट पार्ट को रहेगा। Okay. Sir, could you explain the last part again, sir? Like after the calculation of percentage of mass and length, so that part I didn't understand. After that part. Okay. ये समझ में आया? हाँ sir, वो part समझ में आया। Okay. तो फिर हम लोग उसको लिख रहे हैं कि फाइनल आंसर क्या है।
तो अगर इसमें कुछ एरर नहीं है तो मास का वैल्यू क्या 10 है। हाँ सर। ऐसा लेंथ में कुछ एरर नहीं है तो क्या 1 मिलना चाहिए था। हाँ तो वॉल्यूम 1 आएगा और डेंसिटी 10 आएगा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या 10 मिलना चाहिए। हाँ सर। उसमें 7% का एरर, तो फाइनल आंसर को हम लोग कैसे लिखता है, एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एरर। ओके सर। तो 7% एरर, तो उसका 7% ऑफ 10 मतलब नंबर वाइज कितना होता है, ये तो मैंने परसेंटेज में लिखा है। तो 7% ऑफ 10 तो क्या होता है, 0.7 7% ऑफ 10 लिखा है 0.7। टेन का 7% कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसके मल्टीप्लाई करना है 7/100 से। हाँ सर। We'll get the percentage error limit 0.7, right? हाँ ओके सर। Okay. Then try to solve this one, second one. A method से करना है, find out the answer. सर 7%। सेवन परसेंट। 7%। तो V में या V में एरर कितना हो गया 5%। V में 5% और I में 2%। 2%। V by I है तो दोनों का 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ V प्लस इसका 2, तो दोनों मिला क्या हो गया 7%। समझ में बात। Yes तो sir. ऐसे सब सम है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकता है। आई थिंक परसेंटेज एरर का क्लियर है। थर्ड वन भी कर दो। इसमें क्या दिया है, the relative density of metal is found by handling the block of metal by a spring balance and noting in air. The balance reads 5 plus or minus 0.5, while in water reads 4 plus or minus 1. The relative density would be quoted in. Relative density पता है? What is relative density? Yes sir. Yes sir. Yeah, density of object divided By by water. Density of what? ये भी सब सेम मेथड से आप कर सकते हैं, कैन डू इट एज लाइक अ होमवर्क। फोर्थ वन में बोलो, फोर्थ वन में क्या लिखा है, बाय इक्वेशन व्हिच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोर एक्यूरेटली, मतलब किसके वजह से एरर सबसे ज्यादा होगा, R के वजह से, R पावर power 4। इसका पावर 4 है, मतलब R में अगर 1% का एरर है तो ईटा में बहुत 4 टाइम्स ऑफ 4% एरर होगा, तो ये R में सबसे कम परसेंटेज एरर होना चाहिए। तो आई थिंक बाकी जो Can you चीजें हम लोग explain नॉर्मल, fourth one again? बेटा इसमें जो एरर रहेगा दैट विल बी इक्वल Yes. टू p का पावर 1 है ना, Yes. तो 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन p प्लस 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन हाँ r। okay. तो r में थोड़ा भी एरर हो बट 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा ना इसमें एरर। हाँ okay. तो R में जो मेजरमेंट है सबसे अच्छा खासा लेना है ताकि आपका एरर सबसे मिनिमम रहेगा। ओके Okay. A61 फाइंड आउट करो, 61। L by B करना है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ए वन फंक्शन बाय अनदर फंक्शन कैसे करना है, सॉरी वन विद एरर विद अनदर वन कैसे करना है। 20 प्लस और माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस और माइनस 0.02 करना है। फाइंड आउट द आंसर। फर्स्ट वन है क्या? आंसर क्या आएगा, 2 प्लस और माइनस समथिंग आएगा, सर वो एक्स ऐड कंसीडर करेगा। हाँ
नहीं नहीं, सीधा ऐड करके नहीं लिखना है, परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर को ऐड करना है। सर 2 प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर को 0.03 ऐड, या हाँ सर वही बोला फर्स्ट ऑप्शन। परसेंटेज एरर को ऐड करना है या रिलेटिव एरर को ऐड करना है ना। तो आंसर हम लोग क्या लिखेगा, should be equal to 2 plus or minus something, लोग x लिखेगा। In multiplication or division we need to add percentage error और relative error। तो आप देखना है इसमें x divided by 2 should be equal to 0.01 divided by 20 plus 0.02 divided by 10। तो we'll get x divided by 2 should be equal to, इसका क्या हो जाएगा, 0.1 plus 0.4, right, divided by 200। So we can write x divided by 2 should be equal to 0.4 divided by 200। तो क्या आंसर मिलेगा, x is equal to 0.005। तो what is answer, 5 plus or minus 0.05। समझा? ये सीधा इसको ऐड करके नहीं लिखना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को ही ऐड करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। सीधा उसको ऐड करके 3 कब लिखेगा, व्हेन इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 2 प्लस क्या बोलते हैं, x आपने से क्यों लिया, 2 प्लस माइनस x LHS में जो फाइनल रिजल्ट आए 2 कैसे आया वो समझा? नो सर, हमको 20/10 करना है, 20/10 करके 2 आएगा ना। ओके ओके ऐसा गॉट इट है ना, इसका ट्रू वैल्यू 2 आएगा। बोलो बेटा। Sir, but if we take percentage error, then also we should get the answer same, right? नहीं, Yes, we should get the answer same। Sir, but yes। I am doing by Percentage this. लो या रिलेटिव लो, या I'm doing by that, but I am not getting right answer. For like 0. One minute। आपने L का परसेंटेज एरर निकाला, ओके? तो परसेंटेज एरर इन L will be equal to 0.01 by 20 divided into by 100. 20 into 100। Yes। Okay, so we'll get इसका जो आंसर आपको आएगा which is 0.05। हाँ, okay, sorry sir। Yeah। ऐसा आप परसेंटेज एरर ऑफ B भी निकाल सकता है, वो आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 10 into 100। तो इसको आएगा 0.2 का एरर। तो पूरा मिला के आंसर होना चाहिए परसेंटेज एरर। तो टोटल परसेंटेज एरर इन हमको क्या चाहिए, L/B चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 0.25%। Yes sir। समझा? तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, 2 प्लस और माइनस 0.25%। Yes, तो व्हाट इज 0.25%? 2 का 0.25% कितना है, 2 into 0.25 divided by 100। Oh, okay, I forgot this. So this will be equal to 0.5 divided by 100। It will be equal to 0.05। Sir, I forgot this step। Yeah। अब परसेंटेज में कर दो, रिलेटिव में कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। Okay। बोलो बेटा। Sir, can you solve the fifth question? Yes। Relative error in the measurement of diameter of hydrogen atom is given। तो हमको अगर उसको जस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻² hydrogen atom in meter is relative error in measurement of, okay, yeah। कभी कोई भी क्वेश्चन में अभी देखो एक अच्छा वो भी आपने पूछ लिया। इसमें अभी देखो कुछ क्वेश्चन में क्या है कि वो लोग एरर नहीं देगा, तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। ओके, कुछ क्वेश्चन में क्या आएगा, ऐसा लिखेगा कि 20.00 kilogram। Okay, and they will say that they'll ask what is the
परसेंटेज एरर इन दिस कैलकुलेशन, मतलब ये ऑब्जर्वेशन में एरर कितना है। ओके तो हम लोग को लगा एरर दिया ही नहीं है तो हम लोग एरर कैसे फाइंड आउट करेगा, है ना। अगर ऐसा दिया है तो इजी है, लाइक 20 प्लस और माइनस 2 दिया है एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज एरर इन, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकता है। बट ऐसा दिया है 20.00 एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज एरर इन इट, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, अगर 20 किलोग्राम और 20.00 किलोग्राम उसमें क्या डिफरेंस है? सर 0.00 में उसकी कैलकुलेटेड होगा सर पहले वाले को ज्यादा एक्यूरेटली किया है। एक्यूरेटली किया मतलब उसका मतलब है कि 0.00 तक हमने जाके मेजरमेंट किया है, ठीक है। तो उसमें एरर ये 20.00 में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 100%। नहीं सोच के बोलो। 0.01। 0.01 यस ना बेटा, इसमें हमने 0.01 तक जाके मेजरमेंट किया है तो उसमें एरर कितना हो सकता है? 0.01 का एरर हो सकता है ना। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब अभी आप नॉर्मली आप ऐसे सोचो, आपने इसलिए बोल रहा कि आपने ऐसे सोचो, आपने आपका सेंटीमीटर स्केल यूज करके लेंथ मेजरमेंट कर रहा है। ओके तो उसमें सबसे लीस्ट डिजिट कितना दिया है? 1 मिलीमीटर तक दिया है। तो सेंटीमीटर स्केल यूज करके आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको एरर कितना हो सकता है? सर उसमें मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का एरर हो सकता है। सर लीस्ट है ना बात? हाँ तो अगर उसका मतलब कल इतना है, हम लोग अगर 10.1 लिखा तो उसमें मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? उसमें 0.1 0.1 का एरर हो सकता है। 0.1 अगर 10.23 दिया है तो कितना एरर हो सकता है उसमें? 0.01 बेटा, नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स कितना तक जाके हम लोग ऑब्जर्वेशन किया है। ठीक है, मतलब हियर वी आर हैविंग अ डाउट, मतलब इधर हमारा मेजरमेंट में डाउट है, ये हो सकता है 10.21 है कि 10.23 है या 10.24 है, समझा? सॉरी 22 है कि 23 है या 24 है, समझा? उससे ज्यादा एरर तो नहीं हो सकता है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर मतलब फिजिकली आप देखें तो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, बी है, एंड आर एम इज टू फाइंड आउट व्हाट अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके तो हम लोग अगर इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेगा कि एक स्केल यूज करके मेजरमेंट कर रहा है। अगर ये 10 का मार्किंग है, ठीक है, ये 10.1 का मार्किंग है, ये 10.2 का मार्किंग है, तो हमको ये डाउट हो सकता है इज इट 10.1 या 10.2, समझा? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है? 1 मिलीमीटर का भी हो सकता है। हम लोग इसको जाके 10.3 तो नहीं लिखेगा, है ना, 10 भी नहीं लिखेगा। तो दिस इज हम लोग जो 1 है कि 2 है उसमें डाउट होगा, तो उसके बीच में एरर हो सकता है ना, मैक्सिमम 1 का एरर हो सकता है। तो हम लोग क्या देखना है? नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स ही देखना है, उससे ज्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन में दिया है 123.567, मतलब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है 0.001। समय बाद तो नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स कितना है उतना एरर हो सकता है, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता है। तो दैट इज द लाइक एरर इन दैट। अगर कुछ दिया नहीं है तो हम लोग इसको ऐसा लेके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ओवर हियर आप देख सकता है ये क्वेश्चन में क्या दिया था, 10.06 इंटू 10⁻⁻10 दिया है, 1.06 इंटू 10⁻⁻10 दिया है। तो उसमें एरर कितना हो सकता है? What is the possibility of error in it? 0.01% Yeah. तो ये 10⁻⁻10 को हम लोग नॉर्मली मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई वैल्यू आता है दिखेगा। तो 0.01 में कुछ 0 मतलब इसमें
इतना का एरर हो सकता है. तो you can write error in this will be equal to 0.01 percentage error find out करना था divided by actual value that is 1.06 into 100. तो उनको क्या एरर मिलेगा 1 divided by 1.06 का 1 divided by 1.06 का एरर होगा. समझ बात? Sir, I didn't understand. Can you just that last step? 1.06 में 0.01 का एरर होगा, वो समझ में आया? Yes. Sir, no, sir. How can it be 0.01? Because 0.01 आपने मेजरमेंट किया, तो you are having a doubt that whether it is 0.07 या 0.05. Okay. 0.08 तो होने का चांसेस नहीं है ना, because No. है ना? No. हाँ. Oh, okay, okay. मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 0.01 का एरर हो सकता है. Yes. तो 0.01 का एरर, एक्चुअल वैल्यू कितना into 100, तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा. Okay. इधर रिलेटिव एरर पूछा है, नॉट परसेंटेज एरर. सॉरी, क्वेश्चन में रिलेटिव एरर पूछा है. तो क्या होगा 0.01 डिवाइडेड बाय 1.06. तो आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 106. समझा? इनटू 100 करे तो परसेंटेज मिलेगा, बट देन क्वेश्चन दे आर आस्किंग द रिलेटिव एरर. थर्ड वाला समझ में कि नहीं? Yes, sir. सर तो लीस्ट नेक्स्ट वन थोड़ा बोलो बेटा. एरर लेने Yeah, least count is nothing but the possibility of error. Yes. हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं. This one आप देख सकते हैं कि 19th each side of a cube is measured to be 7.2 into 10 raised to 7.203 meter. What is the total surface area of cube to approximate significant figures? तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है? Each side of cube is measured to be this much. तो हमको क्या चाहिए? टोटल सरफेस एरिया चाहिए. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या मिलेगा? 4L होता है ना? नहीं, 6 into L. 6 into L square. L square. तो अभी इधर भी देखो कुछ एरर दिया नहीं है इसमें, तो हम लोग एरर को क्या मान लेगा? 0.001. Yes. तो वी कैन राइट इट्स सरफेस एरिया हो गया, एक साइड का होगा मतलब a स्क्वायर मान लो एरिया, तो इनटू 6 साइड्स आर देयर. So we can write this will be equal to सर ये एक मिनट आपका ऑडियो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको म्यूट कर दो. या तब उसका वो हेडफोन जो यूज कर दो चेंज कर दो, उस इशू है इसमें. तो 6 into एक साइड का एरिया मान लो a मान लो, और एक साइड का लेंथ l दिया है, तो क्या होगा 6 into l square. गॉट इट? तो अभी हमको क्या देखना है? 6 into ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7.023 into 7.203 करना है. तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन अप्रोक्सीमेट सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो पहले आप क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली आंसर क्या. अगर पहले मल्टीप्लाई देखना है इसका, Or we'll write this as 7.203 plus minus 0.001, right? No. इसमें एरर फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है. अगर एरर पूछे तो ऐसा लिखना है. दे आर नॉट आस्किंग एरर, दे आर आस्किंग फाइनल आंसर. आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिख दो, ठीक है? एरर का नहीं बोला है हमने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बोला ना, वही देखना है. तो 2.023 into 7.203
into 7.203 करेगा तो आपको इसका आंसर मिलता है अराउंड 51.883209 ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, into 6 सर का। आंसर 311 पॉइंट कुछ आ रहा है। ओके हाँ, तो पहले क्या करना है, आप इसका एक्चुअल आंसर क्या है फाइंड आउट करना है। Yes, आपको sir. आंसर मिलेगा 311.299.254 ये एक्चुअल आंसर है। फिर हम लोग हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये देखना है। तो पहले देखना है मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है। तो इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल था द फाइनल रिजल्ट शुड हैव लीस्ट नंबर ऑफ significant figures in any of the observation। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है सर? इसमें लीस्ट तो 1 रहेगा वन शायद। वन नहीं, इसमें 4 है। हाँ 4 है। तो हमारा जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हमारा जो फाइनल आंसर में 4 होना चाहिए। तो हमारा अभी जो नंबर मिला है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ज्यादा है। कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आर देयर। तो उसको हमको अरेंज करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कौन सा डिजिट को ड्रॉप करना है? 1 2 3 4 ये 9 को ड्रॉप करना है। तो हम लोग ड्रॉप कैसे करना है? बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट को एक इंक्रीज करना है। तो आंसर क्या आएगा? 311.3 समय बाद। यस सर। सर 18th वाले में डाउट है सर। बोलो बेटा। 18th वाले में डाउट है। 18th क्या 10 का मल्टीपल में पूछा है? ऑर्डर ऑफ 10:2:30 मतलब अगर आपको 125 का ऑर्डर है, 125 क्या होगा 100 का ऑर्डर पे आएगा ना, तो 100 को हम के 2 लिख सकते हैं ना। तो उसको 100 को उसका 10⁻² को उसका ऑर्डर बोलता है। ऐसा पहले देखना है 2:30 मतलब आंसर क्या आएगा? अगर हाँ कुछ नहीं है, अगर 121 मिल रहा है 121 यू आर गेटिंग द आंसर इज 121। तो 121 मतलब 100 का मल्टीपल में कैसे लिख सकता है? 120 मतलब क्या 100 का ऑर्डर पे है ना बेटा। तो हम लोग इसको क्या लिखेगा 10⁻²। ऑर्डर मतलब क्या रेंज पे आता है उसका आंसर। या आप मतलब कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो इतना सोचो 121 को आप 1.21 इंटू 10⁻² लिख सकता है ना। यस सर। तो ये इसको उसका ऑर्डर बोलता है, समझा। अगर आपका आंसर है, आपको कुछ आंसर मिला 8 6 7 5 4 समथिंग, इसका ऑर्डर पूछा है तो क्या लिखना है? दिस कैन बी रिटन एज 8.7675 इंटू 234 10⁻4। तो इसका ऑर्डर हो गया 10⁻4। समय बाद। यस सर। पर 2 power 30 का क्या आएगा फिर ऑर्डर? पहले 2 power 30 ढूंढना पड़ेगा, समझा। कैलकुलेशन करके 2 power 30 आपको ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग 2 power 30 लॉगरिथम टेबल, हाँ वही है, हम लोग एक्चुअली लॉगरिथम टेबल यूज करके हम लोग इसको फाइंड आउट करता है। बिकॉज 2 power 30 को हम लोग कैसे लिखेगा? सपोज इफ y is equal to x⁻n, तो हम लोग लॉगरिथम यूज करके उसको लिखता है log of x to the base y is equal to n लिखेगा ना। तो ये कंसेप्ट यूज करके हमारा लॉगरिथम टेबल से ही वो हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करता है। हम लोग ऐसा 2 power 30 डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकता। वो मैथमेटिक्स में ध्यान करेगा हाउ टू एनालाइज बाय यूजिंग दिस लॉगरिथम टेबल। अगर उसका आंसर मिला है, जो भी आंसर मिलेगा उसका ये फॉर्म में आप लिख सकता है 1 into 1 point something into 10⁻², तो पता चलेगा कि वो 10 का पावर क्या है। ओके सर। तो और CDF एक बार पढ़ने के बाद ही एग्जाम लिखने के लिए जाना है, ठीक है। CDF में 100% मार्क्स आना चाहिए। ओके ठीक है। यस सर।